Gure Gaura Chandaya Radhikaya Kadaya Krishnaya Krishna Bhakta Bhakta Namo Namah. So today actually is the 100th anniversary of the appearance of Swarup Siddhanta Goswami Maharaj. So a little bit what I've heard from Gurudev and Vaishnavas, that I'll try to repeat. So Maharaj appeared in Bangladesh. So his childhood name was Shiv Shankar. He appeared in a very, very wealthy family. And also he has too much relationship with our father Gurudev. So that history will tell. So as a child he was very religious, especially when his sadhu would come near, then he would always go there with his friends and ask many inquiries, taking some shastra with him. But many types of sadhu he met, but he was not satisfied by their answer. But that time, as a matter of good fortune, Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj, one of the main sannyas disciples of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, came preaching in that area. And young Shiv Shankar went there and inquired from him, and he was completely satisfied by his answers. Therefore, Sri Siddhanta Goswami Maharaj's whole life he spent with Pujapad Bharati Maharaj. From the beginning he joined the Math by his preaching, and together they formed their society and preached all, especially around Orissa and Bengal. So whole life Pujapad Sri Siddhanta Maharaj remained under the Anugatya of Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj. So when he came and joined the Math, that time he saw, all the sannyasis, even the brahmacharis, they know so many languages, they're so much expert in all different types of things. I'm a little foolish, I never went to school. Then he returned back to his village and joined more. That time Param Gurudev, when he heard that this boy had gone back, then Param Gurudev went there to his village and by force called him back to the monk. Their whole life, which by Siddhanta Maharaj had so much affection towards Param Gurudev and his Vedanta Samiti. So I heard Bhakti Vivek Bharati Maharaj was very, like Chitta Maharaj was like very big, very tall, but also very ferocious. So actually, because that boy was always with him, then Bharati Maharaj was always beating. So he never said anything, but the other disciples went and complained to Prabhupada. Well, Bharati Maharaj is very ferocious, he's always beating this young boy, this is not good. That time everyone was about to go out to preach before the Gaur Purnima festival. So Prabhupada called Swarup Siddhanta Maharaj. His brahmachari name was Siddha Swarup Brahmachari. Then Prabhupada asked him, Siddha Swarup Brahmachari, you were going on prachar, who would you go on prachar with? This young brahmachari said, I'm going with Bharati Maharaj, of course. Who else would I go with? And Prabhupada was even used to beating, so his body was bleeding sometimes, some bruises were there. Prabhupada was so pleased by his answer, he put both his feet on his head, because he had so much niষ্ঠা in Vaishnava. But we are not like that. As Gurudev says in Kali Yuga, the Guru has to use 90% of his energy just to fulfill the material desires of the disciple and give him so much prestige and pratishtha that the disciple doesn't run away. But in high class of Vaishnavas, we see the opposite. Even though Vaishnava may chastise, may beat the Vaishnava, the real disciple always thinks this is for my benefit. Therefore, who is disciple? One who accepts the discipline of the Guru happily. That person is a disciple, otherwise he is not a disciple. Therefore, whole life, Pujapad Swarup Siddhanta Maharaj stayed together with Pujapad Bharati Maharaj. One time they went, Prabhupada Saraswati Thakur sent one preaching group to Bangladesh. And preaching around Dhaka, they called one big meeting in the town hall. They invited all the wealthy persons, the barristers, the lawyers, the doctors, the politicians, and the kirtan was going on, and the lecture was going on. Then someone asked Siddha Swarup Brahmachari, please speak something. So that time, Maharaj, he stood up and he said, this Vivekananda, this Rabindranath Tagore is Ram Chagal. Chagal means goat, and Ram Chagal means who has a big beard. And Vivekananda is Avivekananda. He has no discrimination whatsoever. So
So immediately there was like a riot in the assembly. People began throwing chairs, shouting, because in Bengal there's two Bhagwans. One is Rabindranath Tagore, and the other one is Vivekananda. Rabindranath Tagore got the Nobel Prize for Literature, and Vivekananda, he spread his holy mission all around the world. Therefore, when Sridhar Maharaj began saying this, there was a huge disturbance. So that sannyasi, he sent a telegram to Prabhupada. Of this brahmachari, he has single-handedly destroyed the preaching in the whole of Bangladesh. And Prabhupada, when he heard what had happened, Prabhupada gave an answer. I'm very happy at least one of my disciples has understood what is prachar and how to preach. He said, because I'm coming there just now and I will prove that every single thing he said is completely correct. Therefore sometimes we see Gurudev also does that. By force he makes some controversy. And in that controversy, like Guru Maharaj is saying something about Vaishnava Tattva, then 3-4 days everyone talking Vaishnava Tattva, Vaishnava Tattva, Vaishnava Tattva. Therefore Maharaj gave a chance for Prabhupada to come and give real Siddhanta. So I heard that Maharaj took sannyas, but Maharaj was very, very strict. Rasnani Guru used to tell me, even that time we were so busy, we had no time even to touch our mouth. Only a few rounds were chanted all day, Vaishnava Seva, Vaishnava Seva. Because Maharaj himself did so much Vaishnava Seva. Param Gurudev always tells the story of Param Gurudev. When they would go collecting for the Mulmat for Prabhupada, that time they would collect some sabji, and there was 2 bags of sabji, one big bag and one small bag. Then Siddhaswara Brahmachari said, I am small, therefore I will take the big bag. And Param Gurudev said, because you're small, you take the small one, I will take the big bag. Therefore you should fight for Guru Seva. And these days we are fighting not to do Guru Seva. We are complete opposite. Therefore Maharaj was very, very strict. I heard if any brahmachari would not come from Mangalati, then Maharaj would say, if this mat is not for you, better you go outside. Better you go outside. Therefore maybe not so many brahmacharis were living in the mat, but those ones that live must become very qualified. Unless we perform Sadhu Bhajan, unless there's some enthusiasm to perform Sadhu Bhajan, then how we can reach Krishna? Not possible. So Maharaj is also very, very learned. The Vedanta Sutra is described Asuryam Brahma Sutra Nam Paradata Vidinaya Yarakivasti Rupamso Veda Atha Pariprita. It's described as Srimad Bhagavatam is a natural commentary of the Vedanta Sutra. Therefore Pujapad Swarup Siddhanti Maharaj, he took the 550 sutras of the Vedanta and he went through the Bhagavatam to find out which verses of the Bhagavatam describe and give commentary on which verse of the Vedanta. Therefore Maharaj, he made a great contribution in literature. He gave the translation of the commentary of Sri Baladev Vibhushan in the Gita. He translated many of the Upanishads. The Sadhu Darshani, he gave that translation also. He translated Govinda Bhasha of Sri Baladev Vibhushan also. Many Upanishads he also translated into Oriya and Bengali. Therefore, big contribution he made. So Maharaj is especially famous for that also. Also, he was very expert cook. So when Param Guruji entered Vijayalila, that time they called Sri Swarup Siddhanti Maharaj, and he performed some samadhi. And also he gave all different, because Maharaj studied law before. Therefore, after the disappearance of Param Gurudev, then Sri Swarup Siddhanti Maharaj, he called all Gurudev, Sri Pujapad Bala Maharaj, and he made the charter, the legal documents to protect the Samiti, and gave them some instructions how to manage. Therefore, on this day, Guru Maharaj always says, we're so much indebted to Swarup Siddhanti Maharaj, because at that time we had no father, but he gave us so much support and so much nourishment. Therefore, when he left this world, Maharaj gave instructions, no samadhi, no samadhi. Therefore, the samadhi is not available. If you read this good copy of the Harmonist, very, very powerful instructions he gave. That you read, actually I also became astonished. So much deep understanding he gave on the meaning of the disappearance of Guru. He said at the time of the disappearance of Guru, you can understand at that time who was the real disciple and who only came for some
self-benefit. Therefore, I ask you all to read the harmonist, those instructions, very, very strong. He said, at the time of my disappearance, I request that no one should work even one iota against my mission. If you cannot work cooperatively, I request you should go outside and get married, or go somewhere and do Nirjan Bhajan, but don't disturb the mission that I have established. So, if I made any mistake, please forgive me. Sachidananda Gaura Hari Ki Jai. Jivan Sri Sri Goswami Maharaj Ki Jai. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धान्ते प्रभव श्री महात्मने। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे संबंध ज्ञान पदार्था नित्यानंद अभिन्न कलेवर मेरे गुरुपाद पद्मनि लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म परिव्राजक आचार्य त्रिदंड स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता। उपस्थित त्रिपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज मेरे गुरु जी के 70 वार्षिक पूर्ति है। मैं अपना जीवन को अहोभाग्य समझता हूँ जो कि ऐसे गुरुपाद पद्मों का दर्शन, उनका चरणाश्रय करने का सौभाग्य मिला है। लेकिन गुरुदेव का जो आदर्श, उनका जो भजन, ये दुर्भाग्य है जो जीवन में गुरु जी का कोई भी आदर्श को हम जीवन में आचरण नहीं कर पाए। लेकिन सौभाग्य है ऐसे वैष्णवों का दर्शन मिला। इसलिए हमारे प्रभुपाद का शिष्य कहते थे कि प्रभुपाद का जितने गण है ऐसे कभी हुए नहीं और कभी भविष्य में ऐसे गण कभी आए नहीं। ये बात को पुनः पुनः कहा करते थे, क्योंकि प्रभुपाद का जितने गण है वो साक्षात महाप्रभु का प्रेरित होने का। जैसे श्रीमद महाप्रभु सपाल सदस्योधा सहावदरी अपना पूरा परिकर को लेकर के महाप्रभु आए, उसी तरह जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को स्वयं राधा रानी, जो कि राधा रानी की नयन मणि मंजरी राधा रानी स्वयं आदेश देती है, कहते नयन मणि मंजरी जाओ जगत में जीव कृष्ण विमुखता प्राप्त करके संसार में कितने दुख उठा रहे हैं, तुम जाओ जीवों को प्रति कृपा करो। उनका नयनमणि आत्ममणि है, मतलब राधा रानी की कृपा शक्ति ही, दृष्टि जो शक्ति व इच्छा शक्ति व राधा रानी की कृपा शक्ति ही, यदि साक्षात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के रूप में आए, कहते तुम अकेले मत जाया करो, तुम पूरा अपना परिकर को लेकर जाओ। इसलिए प्रभुपाद भी पूरा अपना परिकर को गोलोक वृंदावन से ही उतार करके लाते हैं। नहीं तो ब्रह्मांड कार्य शक्ति धरे जने जने हम सुनते हैं
महाप्रभु का जो परिकर ब्रह्मांड को भी एक ब्रह्मांड को धारण कर सकते, लेकिन यह चीज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का भक्तों में दिखाई पड़ता है। एक शिष्य एक तरफ में गए तो पूरा तोड़ फाड़ उन्होंने बचा दिया। देखो हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, देखो विदेश में गए तो पूरा तोड़ फाड़ बचा दिया, संपूर्ण विदेश लोगों को पूरा आकर्षण करके ले आए। ये कोई साधारण बात है, इसलिए उनको भगवान का 27वें अवतार बताया जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए जिस समय गौरव दास बाबा महाराज, जगन्नाथ दास बाबा महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, इन लोगों ने प्रभुपाद के ऊपर बहुत दायित्व देकर गए, बहुत कुछ दायित्व देकर गए। लेकिन ये लोग जो अंदर ध्यान हो गए, प्रभुपाद मायापुर में बैठ करके बड़े दुखी होकर के बैठे होंगे। हमारे गुरुवर्ग मेरे ऊपर में बहुत कुछ दायित्व देकर गए, ये करना वो करना ये करना, लेकिन मैं अकेला हूँ, कैसे गुरुवर्गों का आदेश को मैं कैसे पालन करूँ? बड़े दुखी हो रहे थे। तो उन्होंने अपना सोचना समाज में दर्शन किया। हमारे गुरुवर्ग प्रकट हो गए, महाप्रभु परिकर को साथ में प्रकट हुए। महाप्रभु बता रहे हैं कि तुम कोई चिंता मत करो, तुम सोच रहे हो अकेला, हम अकेला क्या करूँगा, कोई चिंता मत करो, केवल तुम प्रचार करना प्रारंभ करो। मैं जन बल, अर्थ बल, राज्य बल, सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे हम तुमको मदद कर रहे हैं, केवल तुम शुरुआत करो। तो प्रभुपाद कहते हैं उसी समय मेरे अंदर में जितने उत्साह था, 100 गुना ज्यादा उत्साह आ गया। मैं तो अकेला ही सोच रहा था, लेकिन महाप्रभु ने स्वयं कहा मैं अपना निजजन को भेज रहा हूँ। इसलिए सचमुच से प्रभुपाद का जितने गण है ये कोई साधारण नहीं, ये साक्षात महाप्रभु का प्रेरित निजजन है। इसलिए प्रभुपाद का गण कोई साधारण व्यक्ति नहीं। एक व्यक्ति का अंदर में क्या अद्भुत शक्ति है। प्रभुपाद मान एक स्पर्श मणि थे, जैसे स्पर्श मणि को पास में लोहे आने पर सोने बन जाते हैं। इसलिए देखो हमारे भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज कितने साल में आए? कभी 8 साल उम्र में। भक्ति संत गोस्वामी महाराज 11 साल में आए, कोई 8, 9, 10 कितने उम्र में आए। देखो उनसे किससे हरिनाम प्राप्त हुआ, अगर किसी को दर्शन ही हो गया और कुछ नहीं, उनका समय जो दर्शन हो गया। ये लोग इतने धुरंधर बने, इतने सारा विश्व ब्रह्मांड में उथल पुथल इन लोगों ने मचा दिया केवल इनका संस्पर्श से। तो समझो तो प्रभुपाद कैसे थे, उनका शिष्य वर्ग कैसे थे। इसलिए कोई ये साधारण नहीं थे। इसलिए उन लोग वर्ग में मेरे गुरुपाद वर्ग भी एक अन्यथा बने। हाँ, इसलिए इनका ये जन्म हुए पूर्वबंगाल में, साधारण घर में जन्म नहीं हुए, तो बहुत बड़े पैसा वाला घर में जन्म हुए। कहते उनको कहते थे मेरे पिताजी एक मिठाई दुकान मेरे लिए छोड़ दिया था, जितने मिठाई खाना 1 महीना के बाद जो कुछ होगा बिल मुझे दे देना। मतलब इतना पैसे वाला थे जितने खाओ बाद में बिल दे देना। इसलिए कहते ये जन्म से ही, जिस समय वो जन्म हुए, कहते जन्म से ही बचपन से इनको अंदर में सारे दिव्य लक्षण दिखाई देता था। इन्होंने उसी समय ब्रिटिश विरोध में उन्होंने लड़ाई किया है। स्कूल में थे उस समय। कहते बचपन से ही उनका हृदय में अगाध ब्रह्म जिज्ञासा, इनको अंदर में ब्रह्म विषय में बचपन से ही उनको अंदर में प्रश्न उठता था। जब कोई सुनते थे कोई धर्म प्रचार का आए तो वे अपना पूरा दोस्तों को लेकर जाते थे, और वहां पर जिस समय वो थे मॉनिटर स्कूल के, जिसमें स्कूल में उसमें मॉनिटर थे, इसलिए उस समय कहीं भी धर्म विषय वो सबको लेकर जाते थे, सबको प्रश्न करते थे धर्म को विषय में। जब उनको स्कूल में भर्ती कर दिया गया तब मास्टरों के साथ में लड़ाई हो गया धर्म विषय में लेकर। उन्होंने प्रश्न करते थे मास्टर को, फिर लड़ाई हो गया तो ऐसे लड़ाई हुआ। उस समय धार्मिक थे, लेकिन उनका प्रश्न का कोई जैसा देता कोई उत्तर नहीं दे पाते थे, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। यदि मास्टर क्या पढ़ाई होगी, इनको साथ में लड़ाई होता है, जैसे भक्ति प्रज्ञान कैसे लोग जीवन ये शुरू होता है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, वो स्कूल ही छोड़ दिया। कहती है हमारा प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाते, फिर दूसरे स्कूल में करती थी। ऐसे ही लेकिन उन्होंने जथा जब
उत्तर किससे उनको नहीं मिलता था भगवत विषय में। लेकिन जब हमारे भारतीय गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को द्वारा प्रेरित होकर के जब उन्होंने पूर्व बंगाल को प्रचार करने गए, तो पूर्व बंगाल को प्रभुपाद कहते थे ये दूसरे वृंदावन है। महाप्रभु वहां पर गए थे, तो घर घर में महाप्रभु का पूजा है। पूर्व बंगालियों के अंदर में जो भक्ति की भावना है वो कहीं नहीं मिलता है। कहते जब वहां पर संत लोग जाते थे, स्त्रियों में इतने भक्ति की भावना, संतों को चरण होकर के अपना केशों से उनका चरण को पोषते थे। से उनका भक्ति भावना, इतनी भक्ति भावना। घर घर में संतों जाने पर हर घर में संत की ध्वनि, हर घर में बड़े उनको उत्साह पर उनको संतों का बड़े आदर करते थे। इसलिए कहते अभी जब भारत महाराज गए तो उनको कान में सुनाई पड़ा कोई एक बहुत बड़ा संता है। अभी महाराज बोल रहे थे ना, भारत महाराज देखने पर इतने लंबे चौड़े थे, जब हजार हजार लोग होते थे, जब उनका हई होला बंद करना कठिन होता था प्रभुपाद को, तो उन्होंने भारत महाराज को खड़े करते थे। केवल इनको खड़ा करना ही है, अगर इनको खड़े कर दिया तो लोग इनका सामना लंबे चौड़े इतने बड़े साधु को देख करके अपने आप चुप हो जाते थे। इतने बड़े साधु, इतने लंबे चौड़े, अपने आप चुप हो जाते थे। खैर प्रभुपाद जी बुलवा करके, क्योंकि भारत महाराज बहुत मिठी भाषी थे, मिठी भाषी थे। खैर प्रभुपाद बाद में सुनाते थे, मतलब ऐसे प्रभुपाद का ज्ञान लोग थे। इसलिए जब उन्होंने सुना तो एक संत आए हैं जो संत गीता के ऊपर में, भागवत के ऊपर में, वेदांत सूत्र के ऊपर में क्या लेक्चर दे रहे हैं, सारी दुनिया को पागल बना रहे, मुक्त कर रहे हैं, क्या दिव्य लेक्चर दे रहे हैं। किसी ने आकर के हमारे गुरु जी को बोले, गुरु जी को बोले तो गुरु जी वहां पर गए। गुरु जी गए तो उनका उसी दिन जो वो लेक्चर दे रहे थे, पदति तत्व विदस तत्व ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द। कल इसी श्लोक को ऊपर भारत महाराज व्याख्या कर रहे थे। कहते वो जो भगवान है वो अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान दो नहीं, भगवान केवल एक ही है, जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान एक भगवान। लेकिन वो एक भगवान का जब जब ब्रह्मोपनिषद तत्व से चलूंगा, जिसको निराकार निर्विशेष लोग जिसको ब्रह्म कहते हैं, तो भगवान का अंग कांति है, जिसको आत्मा कहते हैं, यदि भगवान का अंश है। लेकिन कृष्ण कौन है, महाप्रभु कौन है, कहते पूर्ण जब अयम स्वयं अयम, इसलिए वही, इसलिए कृष्णा पर तत्व परम, कृष्ण से छोड़ के कोई पर तत्व नहीं। लेकिन आप लोगों को जो धारणा है, साधारण भारत में दुर्गा को पूजा कर रहे हैं, कोई शंकर जी को पूजा करते हैं, कोई देवी को पूजा करते हैं, कोई गणेश को। इसलिए हमारे भारत में बहुत ही धर्म के विषय में बहुत गड़बड़ी है। सारा दुनिया देवादेव को, कोई बोलते शंकर ही भगवान है, कोई देवी मैया ही सब कुछ है, हमारे गणेश ही सब कुछ है। लेकिन पहले उन्होंने जीवन में मुझसे सुना है कि नहीं, कि कृष्ण केवल अद्वैत ज्ञान परतत्व भगवान कृष्ण है, जितने सारे देवादेव देवी है सब उनका प्रकाश है, जिसको जिस रूप में नियुक्त किया, जैसे नौकरी में वो लोग करते हैं। पहले बार ये चीज जो गुरु जी ने सुन करके आश्चर्य लगा, तो उन्होंने गुरु जी ने कहा एक दिन इनको हम अपना कॉलेज में बुलाएंगे, कॉलेज में इनका एक दिन हम लेक्चर सुनेंगे। तो उन्होंने अपना कॉलेज में उन्होंने बुलाया, और जो बुलाया उस दिन था ये विवेकानंद का जन्मतिथि। हमें महाराज बोल रहे थे हमारे देश में विवेकानंद को साधु अगर कोई है, एक विवेकानंद करके क्यों उन्होंने विदेश देखा इतना, और उसी समय उन्होंने जो लेखा पढ़ा सीखा, इतने उच्च शिक्षा जिसको प्राप्त नहीं था। कहते उनको केवल विदेश में केवल जीरो के ऊपर में उनको पूछा, बोला तो उनको कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया, केवल जीरो के ऊपर में बोले तो उन्होंने जो लेक्चर दिया लोग सुन दर्द हो गए। साधु नाम में केवल विवेकानंद को जानते थे, और भगवान नाम में रामकृष्ण सखा, राम से कृष्ण कलयुग रामकृष्ण है। इसलिए ये थे विवेकानंद पाठ था। वहाँ पर उसी दिन उनका था जन्मतिथि, उसी तिथि पर उन्होंने भारत महाराज को वहाँ पर बुलाए, और उनको प्रश्न था आप सनातन धर्म को ऊपर में
बोलिए। तब उन्हें सनातन धर्म को ऊपर बताते हुए उन्हें गीता भागवत से श्लोक उठा करके और गीता का जो पहला श्लोक धर्म से कुरुक्षेत्रे समवेद दुष्सभा मामतः पांडवा सैव इन अकुर्वन् संजय। केवल इसी श्लोक को लेकर के भारती महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती का, बलदेव विद्यावंशी टीका, मध्वाचार्य का विचार, प्रभु 1.5 घंटा तक एक श्लोक ऊपर में ऐसे उन्होंने व्याख्या किया, ऐसे हरि कथा बोला। प्रभुपाद का बैठने जिसको मेरे गुरु जी बोल रहे हैं, मैं तो सुन कर उसी समय मेरा हो गया। मैं सोच गया और घर नहीं रहूंगा। ये सचमुच यही साधु है। इन लोगों के साथ में मैं साधु बन कर चला जाऊंगा। उनको हरि कथा सुन करके मन प्राण चित्त उनको चरण नहीं हमने समर्पण कर दिया। और मैं किसी तरह से घर में बड़ा कठिन से दिख गया। रात को ये रात भर मैंने इसी विषय में सोचते रहा, क्या साधु। और उन्होंने कीर्तन किया था गोपीनाथ मोहम्मद निवेदन सिंह, उनको बड़े सुरीला कंठ था और कीर्तन करते हुए इस ब्रह्मचारी लोग नाचते हैं। खूब बड़े उद्देश्य से नृत्य किया और साधुओं को नाचते हुए देखा। तो जिंदगी में हम देखे साधु लोग नाचते हुए, अरे साधु लोग नाच रहे हरिनाम करके, फिर उनका हर कथा कीर्तन स्वरूप देख करके हर तरह से उनको जन्म बीत गया। फिर सवेरे से आ करके फिर हम देखा भैया हम तो छोटा बच्चे, क्या मुझे ये साथ में लेकर के जाएंगे। इसलिए उन्होंने देखा किसको बोलूं, देखा कि छोटा सा कोई बच्चा है, कहते इसको साथ में कुछ बात कर सकता हूँ। कहते हाँ बात कर सकते हो। तो उनको अकेला लेकर के बोले कहते मैं भी तुम लोगों को साथ में साधु बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे साथ में लेते हो। वो तो बच्चे पकड़ने वाले साधु ये वो तो इसीलिए आए थे, इसलिए प्रचार कर रहे थे। कुछ बच्चे मिले, हम उनको पकड़ भजन करें, फिर हमारा प्रचार सार्थक हो गया। कम से कम एक बच्चा एक व्यक्ति तो मिला। इसलिए हाँ भारती महाराज के पास में गए। भारती महाराज ने कहा हम तुमको साधु बनाए। बात प्रचार हो गया वहाँ पर, जैसे बहुत बड़े लोग घर के उनको पिता जो काट के गया, ये चाहता है सीख कर बचपन का नाम ही साधु बनने के लिए, अभी साधु को साथ में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। ये संतों लोग आज करके ये बच्चों को पकड़ के लिए आए और हमारे बच्चों को भाव बनाकर ले जा रहे हैं। और जब ये जाने के लिए तैयारी समय उनको एक नदी पार होना, नदी पार होते समय देखा वहां पर पार होते समय पुलिस सब खड़ी और इनको जोर जबरदस्ती पकड़ करके और साधुओं को ये से घर में ले गए। कहते साधुओं ने क्या लेखा पढ़ा सीख रहे हैं, नौकरी करेगा, शादी विवाह करके साधु बनने के लिए जा रहे, उनको जोर जबरदस्ती पकड़ करके ले गए। जब पकड़ करके उनको ले गए, अभी कहते रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन और मेरे गुरु जी का जीवन में करके बिल्कुल सुनता है। ये बहुत बड़े घर के अभी ये पेशाब करने के लिए जाए तो पीछे लोग गए, 3-4 लोग को लगा दिया। टाटी करने के लिए जाए 3-4 लोग तो पीछे जाए, ये भाग नहीं जाए। घर से बाहर इनको निकलने नहीं देते हमें, कहते साधु बन चले नहीं जाए। एकदम उनको पीछे समय लोग लगा कर रखे, बहुत पैसा वाला करके हम किसी तरह से उनको घर से निकलने नहीं देना चाहते। लेकिन उन्होंने देखा अगर मैं ऐसे करूँ तो बहुत कठिन मेरे भजन करना और घर से निकलना। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्हें नाटक रचाया। क्योंकि ये साधु लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, उल्टा सीधा पता नहीं क्या बोल करके मेरे खोपड़ी मैंने खराब कर दिया और बोले साधु बनने के लिए। साधुवाद में कुछ नहीं बनता, बेकार है साधुवाद। हाँ उन्हें गला से माफ डाल दिए, लेकिन कभी कहा साधु लोग आ करके खोपड़ी खराब कर दिए। उन्होंने जब ऐसे नाटक बनाए उन लोगों ने सोचा साधु का बुद्धि सही हो गया, अभी बुद्धि सही हो गया। तो उन्होंने बड़े घर में घर से बाहर जाने नहीं देते थे। अभी गुरु जी ने बहाना बनाया कि तुम्हें बड़ा दिन हो गया, मैं अपना बहनी घर में एक दिन जाना चाहता हूँ, बड़ा दिन हो गया घर में बैठ के पिता मेरा सचमुच इतना दिन हो गया घर से बाहर नहीं जाने दिया। ठीक है तुम बहनी घर में घूम करेगा। तो बात उस समय मैंने आर्डर से ले लिया था भारती महाराज का, बहनी घर तक जाने का बहाना बना करके मैंने छुप करके वहां से गया तो बुराई चला गया प्रभुपाद के पास में। उन लोगों ने पता लगा 2 दिन बाद में शिव शंकर आया है, कहते नहीं
यहाँ आया नहीं, फिर तो हल्ला हो गया, फिर वो भाग कर चला गया, लेकिन भाग कर तो बहुत दूर चले गए, आस पास में रहे नहीं, तो वो बंगाल से कहाँ आ गए, वेस्ट बंगाल में आ गए, वेस्ट बंगाल में आ गए, फिर उनका पता लगा प्रभुपाद किस तरह से फिर तो कोशिश किया लेकिन 2 बार ले नहीं पाए। फिर बाद में हमारे भारत में आम लोग का धारणा है कि साधु कौन बनते हैं जिसको खाना पीना नहीं मिले, जिसका घर बार ठीक नहीं, वही लोग घर बार छोड़ करके साधु बनते हैं। हमारे भारत के लोग तो भ्रम धारणा है, लेकिन हम उस समय हमारे कुछ तो लिखा पड़े थे, कलर में पढ़ रहे थे समय। लेकिन जब वो प्रभुपाद का शिक्षण में आए, हमने जब प्रभुपाद का घर को देखा, संस्कृत में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, जब बैठ करके किसी विषय पर विवेचना करते हैं, प्रभुपाद जब हरि कथा बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वान दिमाग चला जाए। हमारे महाराज जी बोलते थे जब प्रभुपाद का घर जब भक्ति रखे सिद्धर महाराज जी बोलते जब एक जगह बैठते थे, हमारे महाराज जी बोलते हम किसी एक कोने में बैठते थे और हम विचार को सुनते थे। हम लोग उनको विद्वत का कोई था नहीं पा रहे थे, वो किस विषय पर क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे। हमारे महाराज जी बोलते थे उस समय हम था नहीं पाते थे प्रभुपाद का गढ़ में किस विषय को लेकर डिस्कशन होना है। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे जब मैं मंदिर में आया, देखवारी बाबारी सब क्या क्या बोलते हैं, अद्वैत जो शब्द है जिसको डिक्शनरी ढूंढने पर किसी को नहीं मिलेगा, ऐसे शब्द प्रभुपाद का गण बोलते थे। हम तो सोच रहे थे साधु लोग सुधार हो गए, लेकिन प्रभुपाद का किसी शिष्य का लेक्चर उनके सुना, वो ऐसे हुआ अंग्रेजी में शब्द प्रयोग कर देते, बोले हम डिक्शनरी ढूंढने पर हम शब्द नहीं सुनते। प्रभुपाद ऐसे शब्द को व्यवहार करते थे, कितने हाई फाई शब्द है, कितने हाई फाई शब्द। मेरे गुरु जी ने देखा, कहते कितने कम लेखापड़ा सीख करके इनको साथ में रहना कठिन है कि ये मैं कोई था नहीं पा रहा हूँ, इतना कम लेखापड़ा सीख करके हम साथ नहीं बन सकते। मेरे गुरु जी फिर दिलवा गए, फिर कॉलेज फिर भोगला से बोला लॉ पढ़े उन्होंने। जब लॉ पढ़े थे हमारे भक्ति प्रज्ञान कैसे हो स्वामी महाराज सुना जब प्रचार करने गए, उस समय उनको लॉ खत्म हो गया, उनको लॉ पेपर करना था। उस समय उनको साथ में भेट होगा, उन्होंने कहा बहुत उन्होंने पढ़ लिया और पढ़ने का जरूरत, चलो बहुत जीवन बिता दिया, जीवन दुर्लभ जीवन है, पता नहीं किस समय क्या जीवन हो जाए, चलो भजन करने के लिए। फिर उनको पकड़ करके पुनः मंदिर में गया। इसलिए गुरु जी भक्ति प्रज्ञान को शिक्षा गुरु जी मानते थे और बहुत उनको साथ में प्रीति प्रेम भावना था। इसलिए हर काम में ब्राह्मण समाज करके, हाँ इसलिए अंतिम समय जो शहरी जुड़े उन्होंने आकर उनको सब कुछ संभाल भी दिया। और कभी महाराज बता रहे थे कुछ जाने के बाद गड़बड़ी हुआ, उन्होंने पुनः वेदांत समिति को सभी को बुला करके, हाँ संगठन करवा करके इसी नियम चलो व्यवस्था उन्होंने बनाया, उन्होंने सब कुछ उन्होंने किया। इसलिए महाराज साहब उनको विशेष संपर्क करा। इसलिए ऐसे ही गुरु जी का बहुत सारे चरित्र है। अभी हम लोग घर में कुछ सांप और कुछ सुना चुका, अभी हम लोग दर्शन करने के नारद मुझे जाएंगे। मैं अपना जीवन बहुभाग्य समझता हूँ, ऐसे महापुरुषों का दर्शन चरणाश्रय हुआ है। लेकिन गुरुपाद पर नित्य है, हाँ इसलिए शिष्य भी नित्य है। किसी न किसी जीवन में प्रभुपाद की बात करते थे, हमारे गुरुपाद सभी ने ये बात कहा, जो हमारा चरण में शरणापन्न हो गया, जो हमारे उपदेश को सचमुच से ग्रहण करके, जब तक हम उनको भगवान का चरण में राधा गोविंद के चरण में नहीं पहुंचेगा तब तक मैं नहीं होगा। ये सारे प्रभुपाद का सभी प्रभुपाद का ग्रहण के बचन है। तब इससे पता लगानी चाहिए ये लोग कौन सा जगत के लोग हैं जो कि इतने दृढ़ को बता सकते हैं हमारे चरणा जो आश्रय ग्रहण किया है, जब तक हम प्रभु के चरण में नहीं पहुंचाएंगे तब तक नहीं चढ़ेंगे। इसलिए इस सब के साथ श्री प्रभुपाद नए विज्ञान में सारे हिंदू जगह सारे परिकर है, हम लोग अहोभाग्य है क्योंकि हम उनके शरण में आए। इसलिए आज जन्मदिन महोत्सव पर पुष्पांजलि प्रदान करते हैं और आप लोग से प्रार्थना करते हैं, आप लोग आशीर्वाद करो जैसे उपदेश आदर्श भजन को इस जीवन में आचरण करके ये जीवन को जैसे हम धन्य बना सके।
कुछ लोगों की दीक्षा होने वाली थी. Somebody wants to take initiation, but today not initiation, so there is something down.